request my honorable teacher, Professor Yashveer Tyagi, to come on the dais and honor the audience, to come forward for lighting of the lamp. Now I would request our director, Professor Pramod Kumar, to give a bouquet to Divya Sareen ma'am. Ashish Kumar, retired DG, to come on the dais to grace the occasion. Now I would request Dr. Divya Sareen to give a bouquet to Mr. Ashish Kumar. Now I take the honor of giving bouquet to my favorite teacher, Professor Yashveer Tyagi. I take this opportunity to I would like to express my obligation to Director DES, Dr. Divya Sareen Mehrotra ma'am, who very happily agreed to our request to conduct this workshop and to our request to conduct this workshop to strengthen the statistical capability of our state. I request Dr. Kavita Balian to give a bouquet to Professor Pramod Kumar also. I also feel privileged to our director, Professor Pramod Kumar, who gave us free hand to organize this program. He also helped us in chalking out the ways to rope in experts in social sciences. It is an absolute honor to thank DES and the scheme of Triple S of central government who sponsored and agreed to fund this workshop. Now I request Professor Pramod Kumar to address the audience with a welcome note. Honorable Professor Yashveer Tyagi, Divya Sareen ji, and other staff of DES, and my fellow colleagues sitting there. On behalf of Giri Institute of Development Studies, our board of directors, my faculty, staff, I welcome you all for this. Actually, this is 3 days workshop, but the trainees will be changing every day. So I welcome you all for this data processing
workshop on estimation of GSDP. This is actually the beginning of this training event. We are starting here for 3 days with GSDP, and then we'll be taking over to a long series of training for different activities within our GIRI Institute. We are going to have at least next 6 months to 8 months continuous training for different departments. Before I come to the subject, because the officials have come from different departments, I know most of you all know our GIRI Institute of Development Studies, but still I would like to just give a brief introduction of what GIRI is and how do we work, and also would like to thank DES and Planning Division for sponsoring this kind of training programs to GIRI Institute, which is a much more academic institution. Mainly GIRI Institute is one among the 26, 27 institutions all over the country sponsored by Indian Council of Social Science Research. It's a research institute, series of research institutes which were started with initiatives by Professor V.K. R.V. Rao, who was among the earliest known economists of the country. Being an institutional person, he helped in putting up different institutions, Delhi School of Economics, Institute of Economic Growth, and then Institute for Social and Economic Change, where I was working before coming to GIRI. And he played a key role in establishment of Indian Council of Social Science Research. So Indian Council of Social Science Research is basically a organization created to support social sciences in different disciplines for the entire country. So ICSR at present, different times, different please. Yeah, different times, new institutions kept on adding. Our GIRI became ICSR Institute in somewhat around 83, 84. These institutions under ICSR, basically they are, it's a unique model which is mainly for research and PhD program. So these are the two major activities there: research in social science along with PhD, running a PhD program. Meanwhile, some of these institutions have also started postgraduate. There was MPhil course also run by some of those institutions, some of the institutions. But now UGC has wind off MPhil program, so there is master's program in some of these institutions and PhD in most of these institutions. These ICSR institutes are funded by, on 50-50 basis. 50% funds comes from the central government through ICSR, Ministry of Education, and matching grant comes from the state government. That is what model we have. So our 50% grants comes from the Ministry of Education through ICSSR, and the matching grant is given by the planning department, state government. So we are working both for the center as well as state, and it's basically a policy-oriented institution which main job is research, doing different projects sponsored by state government, central government, ICSR, and many other funding institutions, including the international organizations also fund a lot of projects to us. And then we have the also mandate of taking over training and capacity building programs. Among our capacity building program, we run the capacity building of the researchers
who are basically doing MPhil and PhD across India through various funding sources. And also we have capacity building program for the college lecturers, assistant professor, associate professor, likewise. And our main job is teaching is, you can say, 25% teaching to the PhD scholars and guiding them for their PhD. Our almost 2/3 of the priority is research and training programs. So this is basically only institute, ICSR institute in Uttar Pradesh. There were earlier 2-3 other institutions which have left ICSR. They have been taken over either by central government or state government. So now Giri Institute is the only one which is funded by ICSR. And my colleagues, we have experts in sociology, we have experts in political science, anthropology, geography, economics is the main theme, and in economics we have mostly all the department: agriculture, women, gender, industry, finance. We deal with all these different disciplines. So under this program, the purpose of this program is basically, as our program also reflects, we have the trainers who come mostly from the department, and then we have Delight team also here, which is working with the state for making the $1 trillion economy for Uttar Pradesh. And some of the academicians, we have Tyagi ji sitting here, who will be initiating this training program. So the main function of this today's workshop is updating our, I think you are more knowledgeable in GDP estimation. You come from the different departments. You know even better than me what are the methods used in the GSDP estimation. Actually, there has been a discussion in the Department of Planning and other various forums. I have also attended some of those. That the GSDP estimation in the state, there is somewhat when we try to enumerate different activities, economic activities, probably we are not measuring all the activities. Probably there is ground for improvement if we update our method of calculation, and we include all the activities. There are some of the activities which are not taken care at present. Our actual estimation probably will be much higher compared to what we have at present. So what is GSDP? Basically, we will be having the trainers here who are trained people who have been having a practical hand in estimation of GSDP. The DES people will be coming here, and other departments, they will be also taking lectures. So GSDP is basically the total goods and services produced in an economy during a particular year without having double accounting. What is double accounting? Why it is within a boundary of a country? If the company which is led by India, but it is established somewhere in Dubai or in US or in Canada, whatever it produces, well, will that be part of our GSDP or not? I think some of those theoretical issues also will be dealt in. Like GSDP, when we estimate, we have sectoral contribution, which includes primary sector, secondary sector, and tertiary sector. We divide any economy into 3 sectors: primary, secondary, and tertiary. Now, primary sector again will have subsectors: agriculture, then animal husbandry, fishery, then mining and quarrying,
although mining and quarrying in some senses it is part of the manufacturing, but when we say primary sector, we count it along with the agriculture and other allied activities. Similarly, in the secondary sector, we have manufacturing, we have small industries, large industries, and then construction sector, which activities we account in the secondary sector. Tertiary sector is basically service sector, trade, and other services. We have banking, we have communication, marketing, all those activities, and there is defense activities, which is accounted in the tertiary sector. So, domestic product and national product. Now, if it comes German, when Germany will estimate its GDP, they will count that production which a US company is making in Germany. But when they calculate GNP, it will be not part of German, it will be part of US. Because it's a company of US, so national product will be the total national product, whereas GDP is domestic product, which a part might belong to US, it will go to US, part of the production will go to US, but because the production has taken place within the territory of Germany, so it is a part of German production. So there are many terms. Then we have GDP at market price and GDP at factor cost. What is the difference? We have GDP, gross domestic product, we have net domestic product. What is the difference between these? Then there are other terms. How we measure it, there are different methods. We have production methods, expenditure methods, income method, and some of the activities we use production method, which is basically a value added. At every stage, whatever value addition is done, that is accounted as part of the GDP. Some other activities which we cannot estimate in terms of value addition, we include either through expenditure method or income method. I'm sure Tyagiji is going to talk it in detail. I will not go into those details, but I would like to give one message that many of when we are measuring GDP, many activities which are actually adding value, but it does not have, it is not marketed. It does not become part of our GDP. I will give one example. Suppose we have the value of agriculture, production, which is part of GDP. Some part of that, say 10%, 5%, between 5 and 10%, we have agro-processing. Whatever value addition is done at the processing level, that will be added to the GDP. That becomes part of the GDP. But there is a huge amount of processing which takes place at the domestic level. You at home, you not only drink milk, you also eat curd, you eat a lot of butter, you eat paneer. There are other sweets which are just prepared at home. If you buy a sweet, barfi you buy from the market, it is part of the GDP. But you have bought the milk, you have processed at home, it has not gone to the market, its value is not added into the GDP. We oftenly say our agro-processing is less than 5%. US economy has 45-50% agro-processing. China has around 20-25%, something that. In developed countries, mostly 50 to 60% product is processed, whereas in developing countries, much lower amount is processed. Now, it is very difficult when I just see in US, most of the commodities they will buy from the market. There is hardly any house where sweet will be prepared from the milk. Naturally, if they are buying from the market, everything adds to the GDP. Whereas we are buying the raw material, processing it and eating at home, it doesn't add to the GDP. So
is there a way, we need to think about it, is there a way to add that part into the GDP? Our GDP is much, much higher. But because of the lack of measurement, we are not able to have that part. So this is one issue. One more issue is, we oftenly say agriculture's contribution in GDP is, say now all India is around 15%. There is a fluctuation up and down, but on an average it's 15%. Probably that might be accurate. Over time we have come down from 55% to 15% now. But employment share, we have 55%. Is that true? See, when we try to measure GDP, this is where our DES can make a lot of difference. How do we distinguish the employment coming from agriculture and employment coming from other activities, industry, and the waste? We have informal waste within the village, we have service sector, we have business activities. Now, in most of the cases, agriculture holdings have come down. I expertise in agriculture. I know what was the holding size, say 20-25 years back. We have come down to less than 2 acres now on average, which was 5 to 6 acres, say 35 years back. The problem is, even today, when agriculture census takes place or any other survey we do, we ask the household, what is your main business? What is the main occupation of the household? They will count it as agriculture. If we go into detail, probably agriculture might be contributing only 20% of the household income. 80% is coming from other activities. 2 persons of the family are in service. Maybe they are earning 50,000, 60,000, 1 lakh rupees per month. But because the survey is done with the head of the household who is agriculturalist, so we count it as agriculture. And we say our 50%, 55% population is still dependent on agriculture. So we have, like we are underestimating on the one hand, the contribution of the other sectors which is doing there. Agriculture is contributing only 20%, but it is the main occupation. It is counted as main occupation. We have to change our methodology. When we go and talk to the family, we need to see how much is the time spent on agriculture and how much is the time spent on non-farming. Probably that will give us the right estimate how many are dependent on agriculture. Or we need to ask how much is the family income coming from agriculture, how much is coming from the other activities. Probably that will give an appropriate method of estimation of total employment in agriculture. It might be not more than 30%. So when we are planning, we are supposing that those people, all those people, they are dependent on agriculture. In actual sense, they are not. Similarly, tax policy will change. There is a whole lot of things will change the moment we have the appropriate method of calculation, appropriate data with us will enable us to have the proper methodology, proper technique and proper planning for other sectors. So I think we are going to discuss a lot of these things in these coming 3 days. We have the experts here, and I think when our experts talk how they are estimating, we need to also discuss what are the alternatives. Are we making a mistake there? I am sure there is some mismatch certainly there. It cannot happen that 55% population is contributing only 10 to 15%. In some of the states, agriculture contribution is less than 7-8%. You go to South, Kerala is contributing, I think, 7 to 8% to the GDP. But is that the major population still engaged in agriculture? If you see their percentage of employment, it is shown as majorly from the agriculture. Although agriculture land is fallow, nothing is being produced.
Similarly, when we are estimating agriculture production, we are asking how much is your land. Say somebody says 10 acres. What are the crops grown on that land? Hardly there will be 2 or 3 crops will come. I'm sure there is lot of other activities also happening there. Like on the hedge, you have grown some horticulture. You have some trees, fruit trees, which neither are collected. The information is not collected at all. Kitchen gardening by small and marginal farmers, most of them they will be doing. They will have some marginal land for vegetables. If we start accounting all that marginal land, probably there might be 5-6% contribution to the GDP in the agriculture sector. So we have to see what are the present ways of calculation, what methods we are adopting at present, in what way we can make those changes required, which are necessary to have the proper accounting. Agro processing, we have a lot of activities which are happening, but which is not accounted. There are other informal business within the village. Somebody has a shop, which those activities are not properly measured when we are estimating GDP at the village level. Probably our team has to be trained so that all those activities are appropriately taken into account. And that is the main purpose of this workshop being organized here. So I think we have 2 more speakers, and we have the next session 11:15 probably in our program. So I will stop here. I thank you all for coming, joining, and I hope there will be a lot of learning, and this 3-day workshop will give very good results for the measurement of GSDP for the state, and there will be new thinking evolved from this workshop. I thank the planning and the DES for giving us this opportunity, Giri, to organize this, and I hope we will keep continuing these kind of activities in the future as well. Thank you one and all. Thank you very much. To address the audience with introduction and objectives of this workshop. इस सभागार में उपस्थित हमारे पूज्य अध्यापक श्री त्यागी सर, हमारे डीजी CSO के रिटायर्ड डीजी सर आशीष सर जी, गिरी इंस्टीट्यूट के निदेशक, और हमारे DES के अधिकारी जो उपस्थित हैं सभागार में, और साथ ही सभागार में विभिन्न विभागों से आए, इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए आए प्रतिभागी, सभी लोगों को का इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है और सभी का अभिवादन मैं करती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग जो है वो विभिन्न प्रकार के प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके आकलन करने का कार्य भी और दायित्व भी अर्थ एवं संख्या प्रभाग का ही है, जो हम आप लोगों के सहयोग से, विभिन्न विभागों के सहयोग से निकालते हैं। आज अर्थ एवं संख्या प्रभाग गिरी विकास अध्ययन संस्थान के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। कार्यशाला जो है डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग फॉर GDP एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग GDP फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा एंड इम्प्रूविंग एक्यूरेसी, इस विषय पर आधारित है। 3 दिवस की कार्यशाला है। इस कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग के रेफरेंस में, उससे स्पॉन्सर्ड है सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन
ने रिकमेंडेशन करी थी, उसके बेसिस पर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम में कैपेसिटी बिल्डिंग और डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्ट्रेंथन करने के लिए एक योजना स्टार्ट करी गई थी, इंडिया स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, जिसमें स्टेट ने, हमारे उत्तर प्रदेश ने 2015-16 में पार्टिसिपेट किया और एक MOU साइन हुआ। फिर उसके बाद 2016-17 में ये योजना फिर रीस्ट्रक्चर्ड हुई और इसमें इसका पहले ये हमारी जो स्कीम थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर की स्कीम हो गई और 2016-17 में भी इसमें स्टेट ने पार्टिसिपेट किया और इस स्कीम का नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग हो गया। इस प्रेजेंटली हम स्टेट में $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाए जाने के लिए स्टेट की प्रतिबद्धता है। इसको देखते हुए हमारे डिफरेंट स्टेट इनकम एस्टिमेट्स जो हैं उसका सही तरीके से आकलन करने के लिए और जो डिफरेंट डेटा गैप्स हैं जो आवश्यक हैं उनको भरने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर जो हमारा स्टेट स्ट्रेंथनिंग स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट था, उसका जो स्टेट प्रोग्राम बना था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया और इस स्टेट प्रोग्राम में डिफरेंट स्टडीज़ और सर्वेज को हमने सम्मिलित किया और डिफरेंट वर्कशॉप्स जिससे के माध्यम से हम विभिन्न विभागों के लोगों को स्टैटिस्टिकल वर्किंग के बारे में बता सकें और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया गया है। ये स्टेट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुमोदन इसका प्राप्त हुआ। उसके पहले चीफ सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में जो एक हमारी स्टेट हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन कमेटी है उससे अप्रूव हुआ, उसके बाद भारत सरकार से इसका अनुमोदन हुआ है और उस अनुमोदन के बाद अब हम जो हमारा नया रिवाइज स्टेट प्रोग्राम है उसके क्रियान्वयन में हम लोग लगे हुए हैं। उसी एक कड़ी में ये आज की कार्यशाला का आयोजन है और इस कार्यशाला के आयोजन में चीफ सेक्रेटरी सर का भी निर्देश था कि इस तरीके की कार्यशाला विभिन्न विभागों को आमंत्रित करके की जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए। हमारे प्रमुख सचिव नियोजन सर, उनका भी निर्देशन रहा है इस कार्यशाला के आयोजन में। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारा विभिन्न $1 ट्रिलियन इकॉनमी को बनाए जाने के दिशा में जो भी विभाग इससे जुड़े हुए हैं उनको उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर राज्य का जो हम SDP GSDP के अनुमान निकालते हैं उसमें उनको किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, उनके आंकड़ों की क्या उपयोगिता है, हम किस तरीके से उनका प्रयोग करते हैं, क्या उनकी टाइमलाइन निर्धारित है, उन सब के बारे में आपको आज इस कार्यशाला में बताया जाएगा। और इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंट इसी कड़ी में हमारे SSS का जो प्रोग्राम है उसमें हमने फील्ड लेवल पर भी डिफरेंट सर्वेक्षण जो होते हैं उसमें हमारे फील्ड स्तर के अधिकारियों को भी सेंसिटाइज करने के लिए सभी जिलों में सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करी, जिसमें डिफरेंट सर्वेज के माध्यम से जो आंकड़े आते हैं उनकी क्या उपयोगिता है, कैसे यूज़ होते हैं और उनको कितनी एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट करना चाहिए और उनका क्या उपयोग हम कहाँ करते हैं, क्योंकि डिफरेंट सर्वेज के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको भी हम लोग GSDP के जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें यूज़ करते हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट इनकम के जो रिजल्ट्स निकालते हैं, एस्टिमेट्स निकालते हैं, उसमें भी उनका प्रयोग करते हैं। तो आज इस कार्यशाला जो आज हम 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे हुआ है गिरि विकास अध्ययन संस्थान के सहयोग से। उसमें जो हमारी इकॉनमी के, जैसा अभी डायरेक्टर गिरी इंस्टीट्यूट सर ने बताया कि हमारी इकॉनमी ब्रॉडली 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, तो इसे 3 सेक्टर में हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया है और उसी सेक्टर के हिसाब से डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे आमंत्रित किया है और
उसी के आधार पे हमने अपने टाइमलाइन निर्धारित करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आज सबसे पहले दिन हम एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें से संबंधित विभागों पर उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। फिर चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा बड़ा है तो सेकेंड डे भी हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के जो और रिलेटेड पार्ट हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह है, उस पर चर्चा करेंगे फर्स्ट हाफ में। एंड देन फिर सेकेंड हाफ में सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे चर्चा की जाएगी। और थर्ड डे जो है सर्विस सेक्टर, उस पर चर्चा होगी और उसी से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को भी यहाँ पे बुलाया गया है। जैसे जैसे जिन जिन सेक्टर्स के विषय पे चर्चा होगी उसी के अकॉर्डिंग विभागों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो इस कार्यशाला के दौरान प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाए जाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत यहाँ पे हमारे डिलाइट संस्था के लोग भी हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी को बनाए जाने में डिलाइट संस्था भी उससे जुड़ी हुई है। जो डिलाइट संस्था के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगी। और अगले 5 वर्षों में जो सेक्टरवार, विभागवार जो रोड मैप डिलाइट संस्था ने तैयार किया है, उससे वो लोग भी आप लोगों को अवगत कराएंगे और जो आगे भावी रणनीति होगी विभिन्न विभागों के लिए, उससे भी डिलाइट संस्था यहाँ पे अवगत कराएगी। इस सभागार में मैं आप सभी उपस्थित विभागीय अधिकारियों का इस कार्यशाला में स्वागत करते हुए ये आह्वान करती हूँ कि इस कार्यशाला के माध्यम से प्रदेश की आय के आकलन में प्रयोग किए जाने वाले आपके विभागीय आंकड़ों में समयशीलता के साथ साथ उनकी एक्यूरेसी, उनको कैसे उपयोग करते हैं, उसके बारे में आप लोग जानेंगे और जो भी शंकाएं होंगी उससे संबंधित वो आपकी शंकाएं दूर हो पाएंगी और आप जो अब हमें भविष्य में डेटा उपलब्ध कराएंगे उसमें और एक्यूरेसी के साथ, टाइमलीनेस के साथ उपलब्ध कराएंगे और हम आपके सहयोग से प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपने जो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसमें पूरा सहयोग प्रदान कर सकेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का इससे स्वागत करते हुए आपसे पुनः सहयोग की अपेक्षा करती हूँ और इस कार्यशाला के आयोजन की सफलता की भी कामना करती हूँ। थैंक यू। Thank you, ma'am, for enlightening us on the objectives of this workshop. To give introduction to the concept of GSDP. Thank you, ma'am. Thank you all. पूजनीय प्रोफेसर त्यागी सर, गिरी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर, रिटायर्ड डीजी मॉस्पी सर और डायरेक्टर मैडम, आप सब एवं सारे उपस्थित साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारा ये जो वर्कशॉप है ये बहुत सफल हो, इसकी कामना के साथ। मेरा टॉपिक है जीएसडीपी वर्कशॉप का आज का जो मेरा $1 ट्रिलियन। नेक्स्ट, हमें 2027 तक $1 ट्रिलियन वो करना है। अब जीएसडीपी की थोड़ी डेफिनेशन क्या है ये इसको बताते हैं कि ये विदाउट, जैसे कि पहले वक्ताओं ने बोला ही है कि ये विदाउट डुप्लीकेशन से हम 1 वर्ष के अंदर कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं उसका मेजरमेंट है। और डिफरेंट यूनिट्स को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, क्योंकि इसके बाद ये जो एस्टिमेट हम स्टेट पे करते हैं वो इनकम ओरिजिनेटिंग अप्रोच से करते हैं, अर्थात हमारे बाउंड्रीज के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है, उसको हम जोड़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ये है कि
एनएसडीपी और जीएसडीपी का अंतर ये है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को माइनस करने से जो यानी जो मशीनों का घिसाव होता है उसको माइनस करने से जो चीज़ आती है जीएसडीपी में से। और जीएसडीपी में क्या है, जीएसडीपी का जो जीएसडीपी में आउटपुट माइनस प्रोडक्शन अप्रोच से इन जनरल ज़्यादातर जगहों में जो हमारा अप्रोच है वो 1 वर्ष के अंदर कितना आउटपुट हुआ उससे कितना उसका इनपुट माइनस करते हैं तो वो जीएसडीपी हुआ, जीएसवीए हुआ उस सेक्टर का। उसके बाद जीएसवीए फिर जीएसडीपी निकालने के लिए हम प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडी को हटाने के बाद सब्सिडी को माइनस करते हैं, टैक्स को जोड़ते हैं प्रोडक्ट टैक्स को, तो उससे बनता है जीएसडीपी। और जीएसडीपी के बाद जब जीएसडीपी में से हम सीएफसी माइनस करते हैं तो वो एनएसडीपी बनता है। पर कैपिटा में हम एनएसडीपी स्टेट पे जो हम करते हैं एनएसडीपी से भाग देते हैं उस वर्ष की हमारी 1 अक्टूबर की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे यहाँ कब से शुरू हुआ, 48-49 से ही बिहार, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में अराउंड इस 48-49 से स्टेट इनकम एस्टिमेशन हो रहा है। फिर इसके बाद ये है कि इस समय सारे ही लोग बना रहे हैं, सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज करंट प्राइस एस्टिमेट्स में। द एस्टिमेट्स नेक्स्ट, एक बेस ईयर का कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमें मेन जानना होता है कि हमने कितना ग्रोथ किया, तो ग्रोथ के लिए हमें बेस ईयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम क्योंकि प्राइस इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी रहता है, तो हमारे ग्रोथ के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे प्राइस एस्टिमेट्स को कांस्टेंट प्राइस पे ले जाते हैं। कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेट्स इस समय 11-12 बेस ईयर है। 48-49 से लेकर बेस ईयर कब ये 48-49, 60, 61 एंड सो ऑन 11-12 इस समय बेस ईयर है। और कब चेंज हुआ, ये 48-49 का बेस 1956 में हुआ एंड सो ऑन 2010 में 4-5 का हुआ। 2016 के शुरू में हम लोगों ने यूपी में 11-12 बेस पर अपना एस्टिमेट्स तैयार किया है। नेक्स्ट, इसमें बेस ईयर में हमारे अनऑर्गेनाइज्ड, हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका डेटा हमें इन जनरल आप से मिल जाता है, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए हमें सर्वे की आवश्यकता होती है। बेस ईयर जिन सर्वेस का हम आज भी प्रयोग कर रहे हैं 2011-12 का, वो जो बहुत पुराने हो चुके हैं, इनको फिर नया होगा निकट भविष्य में, तो इनका प्रदर्शन ये है कि हम लोग एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे 68th राउंड बने 11-12 के सर्वे, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज सर्वे और भी इनको हम इन ईयर्स का ऑल इंडिया डेप्ट इन्वेस्टमेंट सर्वे, पॉपुलेशन सेंसस आज हम 11 का ही यूज़ कर रहे हैं, पॉपुलेशन सेंसस अभी भी हुआ नहीं है। एग्रीकल्चर सेंसस का उस बेस ईयर में कौन से ईयर का था, इस तरीके से कर करके हमारा बेस ईयर में हमने इन सर्वेज को यूज़ किया है। उसी से हम हमारे कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेट्स ये हमारे सारे ये बेस ईयर पर आज भी डिपेंडेंट है हमारे एस्टिमेट्स, स्टेट इनकम एस्टिमेट्स। एंड आगे नेक्स्ट, फिर इसके बाद जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये 3 मेजर सेक्टर हैं। आप आज आगे के 3 दिनों में जैसा आप लोग पढ़ेंगे ही इस विषय में, किसमें कौन एक थोड़ा सा नेक्स्ट, प्राइमरी में कौन आता है, सेकेंडरी में कौन आता है, इस कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, कौन से सेक्टर सब सेक्टर्स हैं, उनका ये चार्ट है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग है, एग्रीकल्चर, फिर लाइव स्टॉक भी है। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा ऊपर कर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, फिर एक बार नीचे करना, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, थोड़ा नीचे, हाँ स्लाइड, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई है, ये सेकेंडरी में है। और टर्शियरी में ये थोड़ा सा
चलिए वो कुछ है प्रॉब्लम। टर्शियरी का ये सही बना हुआ है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई है, और टर्शियरी में ये सेक्टर्स जो दिख रहे हैं आपको, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, और ऊपर करेंगे ये है, ये सेकेंडरी के दिख रहे हैं। ये हो गया सेकेंडरी का जो बोला था, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। और टर्शियरी में ये सेक्टर्स आते हैं। इसके बाद कुछ सुप्रा रीजनल सेक्टर्स हैं जिनकी बाउंड्रीज जैसे वो अन्य प्रदेशों में भी है, जैसे रेलवे है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। इनका डेटा हमें सीएसओ से मिलता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से, और जिसको एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से मिलता है। और ये डेटा अपने प्रदेश के लिए वो हमें देते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे वो एस्टिमेट्स है जो हमने 17-18 से लेकर, ये शायद दिखेगा नहीं, 17-18 से लेकर हमने जो बनाए हैं हर ईयर का सेक्टर वाइज। जब डिटेल में लोग पढ़ाएंगे, बताएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें वो चीज़ें आ जाएंगी। मेन है इस समय 22-23 का 22.57 लाख करोड़ हमारा टोटल है, टोटल जीएसडीपी है। एक लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए जिसमें एक लास्ट, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, डिटेल्ड में आप पढ़ेंगे ही। एक लास्ट स्लाइड है जिसमें ये बताया गया है, इन सब स्लाइड्स प्राइमरी में हम प्रोडक्शन अप्रोच से करते हैं। लास्ट स्लाइड में ये है कि क्योंकि इनमें जो भी लिखा है इसमें, हाँ ये वाला, इसके ऊपर वाला स्लाइड, इसमें ये है कि हमारा किस तरीके से किस सेक्टर का कितना रेशियो है, तो कितना प्रोपोर्शन है। वो है कि एग्रीकल्चर का 25.9% है। उसके बाद सारे सेक्टर्स का इस तरीके से ये बना हुआ है, एग्रीकल्चर का हुआ, अलग अलग सेक्टर्स का ये दिख रहा होगा। तो अंत में आपके आज के इस वर्कशॉप के सफल, आज के नहीं 5 से 7 तक आयोजित इस वर्कशॉप के लिए, वर्कशॉप का आयोजन सफल हो और आप लोगों को आप इससे कुछ अच्छा सा सीखें, आपको क्या करना है वो समझें, हम लोगों का दायित्व तो हम लोग एक दूसरे से समझें। इसकी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। Guna Dhondiyal ji for giving her lecture. मैं मंच पर अधिकारियों और अपने अधिकारी कोलीग्स, इस हॉल में उपस्थित सभी प्रतिभागी अधिकारियों के प्रति अपनी ग्रीटिंग्स ऑफर करते हुए सभी का अर्थ एवं संख्या प्रभाग की ओर से इस कार्यशाला में स्वागत भी करती हूँ। ये इनॉग्रल सत्र है, इसमें हम लोगों ने सर लोगों ने जितने, मैडम लोगों ने जितने अपने यहाँ पे बोला, उसमें हमको एक ओवरव्यू मिल गया है पूरा, और डिफरेंट सेक्टर्स के आगे सत्र हैं, उसमें हम लोगों को डिटेल्ड मेथोडोलॉजी भी मिलेगी। इस समय हम लोगों के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम यूपी एक डिफरेंट टाइम में एंटर कर चुका है। हमारी शासन की पॉलिसीज ऐसी हैं कि हम एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ के समय को देख रहे हैं, और इस ग्रोथ को सरकार पॉलिसीज ला रही हैं, प्रोग्राम्स ला रही हैं, और इन सब को हम लोगों ने एक सिंगल टारगेट में कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में वो हमको दिखेगा। इट विल बी मेजर्ड इन terms of $1 trillion economy, what all programs and development works we have envisioned for the state. और ये एक हम लोगों को इस युग में हम इस जर्नी का पार्ट बन रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस जर्नी को हम मॉनिटर कैसे करेंगे, हम सही डायरेक्शंस में बढ़ रहे हैं, हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, हमारी पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट आ रहा है,
पॉलिसीज़ को कैसे इवेलुएट करेंगे, अपनी इकोनॉमी को कैसे इवेलुएट करेंगे, इस सब के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। और आज के ज़माने में हमारे पास ट्रेडिशनल डेटा है, लॉट ऑफ डिजिटलाइजेशन हैज़ हैपन, सर्वेज हमारे बहुत सारे आ रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड को करने के लिए। तो डेटा कलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मॉनिटरिंग। द मोर डेटा की एक्यूरेसी होगी, हमारे पास उतने अच्छे कलेक्शन डेटा का आएगा, उतना अच्छा हम लोग पॉलिसी फॉर्मुलेशंस कर पाएंगे, एक्यूरेसी कर पाएंगे। तो हम इस वर्कशॉप का मेन उद्देश्य यह है कि हम अपने रोल्स को आइडेंटिफाई करें, कहाँ हमारा डेटा कलेक्टर का रोल है, कहाँ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है। और इस सब को करते हुए हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एम एक रखा गया, मतलब कि हाउ वी लाइक एसेस की हम पहुंचे कहाँ हैं। तो 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए हम लोग आगे अग्रसर रहेंगे। और इन जीडीपी के जो नंबर्स हैं, इनके थ्रू हम एसेस करेंगे कि वेयर वी हैव रीच्ड, आर वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। डेटा की जब मैं बात कर रही हूँ तो भी ऑन नो कि हम लोगों का ये जो जनरेशन है, ये डेटा का ही जनरेशन है। डेटा एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, हमारे घर में सभी जो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स भी हैं, दे ग्रेजुअली गो इनटू डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसी के साथ एक इनहेरिटेंट उसके साथ एक फीचर है कि डेटा कलेक्शन इज़ वेरी चैलेंजिंग। नॉट ऑल सेक्टर्स आर सो ऑर्गेनाइज्ड कि हमको सबका डेटा मिले। फिर जो सर्विस हैं उसमें इन जनरल अवेयरनेस ऑफ मैसेज, जो जिनसे हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, जब हम रिस्पोंडेंट होते हैं तो उतना अच्छा हमारा रिस्पांस नहीं होता, हम डेटा को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि डेटा एक इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, हम लोगों का डेटा कहाँ यूज़ हो रहा है, उसका क्या एप्लीकेशन है, उसकी जब तक हमको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उतना अच्छा हम लोग अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो वाई वी आर वांटिंग दैट डेटा, हमें किन पॉइंट्स पे, किन बिंदुओं पर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए देखना है, किस टाइमलाइन के हिसाब से हमें देना है, कहाँ हमारा यूज़ हो रहा है। हमारे 35 से 40 विभाग हैं जहाँ से हम डेटा लेते हैं। हमारे ये नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज, यानी जिन्हें हम पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी निगमों के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट 70 to 80, उनकी हम लोग एवरी ईयर बैलेंस शीट लेते हैं। इसके अलावा हमारी जो सेंट्रल एनडीज हैं, दे आर ऑलमोस्ट 100, जिसका हमको एनएसओ एनालाइज करके देता है। फिर हमारी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं जो करीब स्टेट में 150 हैं, और जो सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं उसका डेटा एनएसओ करके हमें देता है। देन देयर इज लॉट मैनी डेटा सेट्स। मतलब मैं फील देना चाह रही हूँ कि जब हम एवरी ईयर ये एस्टिमेट्स बनाते हैं तो ह्यूज डेटा सेट होता है, और हर डेटा अपना प्ले करता है रोल। और फिर ये एक ऐसा इंडिकेटर हमारे पास आता है जो कॉम्पोजिट, एक सिंगल कॉम्पोजिट मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेटा है, जिसको अगर हम कहें कि एक फिगर में कोई बताना है तो हमारी ग्रोथ, जैसे हमारी 21-22 में ग्रोथ 20% रही, हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो ये एक सिंगल मैक्रो इंडिकेटर है। इसके अलावा हर सेक्टर के अंदर इसके अंदर एम्बेडेड है कि हमारा एग्रीकल्चर ने कैसे फेयर किया, इंडस्ट्री ने कैसे फेयर किया। अब हम इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो हमारी डीप डाउन हम जब डेवलप करते हैं तो हमारी कौन सी लेदर इंडस्ट्री ने अच्छा किया, या कि हमारी फूड प्रोसेसिंग ने किया, या लॉट ऑफ इट इज देयर। फिर कहाँ हमारा पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो मतलब इस तरीके से आपको बहुत डीप डाउन एनालिसिस मिलती है, जिससे हम पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में सबको यूज करते हैं। दैट टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डेटा। अब इसमें हमारा क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैडम ने अभी पूरा आपको जीएसडीपी का ओवरव्यू दिया कि व्हाट इज बेस ईयर, व्हाट इज करंट कांस्टेंट, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, फिर क्लासिफिकेशन क्या है, देयर आर स्टैंडर्ड मैथडोलॉजीज, इंटरनेशनल लेवल पे मैथडोलॉजी निर्धारित है। सब कंट्रीज अपना सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 को फॉलो करके करते हैं। एनएसओ ने सभी स्टेट में, ताकि कंपेरेबिलिटी रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे। सीएसओ ने स्टेट्स के लिए मेथोडोलॉजी निर्धारित की है, लेकिन इसके अलावा भी हमको इन डेटा के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के लिए और नीचे की भी एस्टिमेट्स की ज़रूरत होती है। तो हमारा एक स्टेट ऐसा है कि जो डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बनाता है, और आप ही के विभागों से हम लोग डेटा भी लेते हैं।
कुछ डायरेक्ट हैं प्राइमरी सेक्टर्स के, कुछ इनडायरेक्टली भी लेते हैं। तो जैसे कुछ जो इनडायरेक्टली, उसके हिसाब से हम लोग डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बनाते हैं। देन वी हैव अ वेरी वेल डिफाइंड कैलेंडर, 3 रिवाइज भी होते रहते हैं एस्टिमेट्स। साल में हम लोग 3 एनुअल एस्टिमेट्स बनाते हैं, 4 क्वार्टरली एस्टिमेट्स बनाते हैं, सिमिलर टू व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो हैज अ वेरी डिफाइंड कैलेंडर फॉर इट। तो उस कैलेंडर को भी हम देखेंगे और उस कैलेंडर के हिसाब से हमारी विभागों से क्या डेटा टाइमलाइन निर्धारित है। इसमें अभी रिसेंट समय में बहुत सारे जियोज भी हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी सर का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था, उनके स्तर से विभिन्न विभागों को टाइमलाइन भेजी भी गई हैं, आप लोग उससे अवगत भी होंगे। और 30 सितंबर तक लाइक हम लोगों को डेटा मिल भी जाना चाहिए था। तो ग्रेजुअल सत्र में डेटा रिक्वायरमेंट्स, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह सारा देखा जाएगा। इसके अलावा मैडम ने अभी बताया था कि जैसे 13 सेक्टर्स में सब सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमी डजंट बिहेव इन अ वेरी होमोजीनियस वे। हर एक सेक्टर सब सेक्टर का डिफरेंट बिहेवियर है। कुछ किसी में यूनिट में होता है, एग्रीकल्चर इज अ प्रोडक्शन बेस्ड सेक्टर, देन सर्विसेज दूसरी तरीके के हैं। तो उनको एडिटिव बनाने के लिए सब वैल्यू टर्म्स में, रूपी टर्म्स में किया जाता है। तो एक तो वो क्लासिफिकेशन हो गया। देन विद इन द इनटू सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन सब सेक्टर्स। देन विद इन द सेक्टर देयर आर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। तो ये इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स जैसे एक जनरल गवर्नमेंट हो गई, जिसमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हो गई, जैसे लोकल बॉडीज को हम जानते हैं। देन देयर इज कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, फाइनेंशियल जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर। देन नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो जैसे फॉर एग्जांपल सोप, टॉयज, जो कंपनी एक्ट में पंजीकृत होती हैं। देन we have the ये दो हो गए। then we have the household sector which is one of the biggest sector, जिसका डेटा लेना अपने आप में बहुत चैलेंजेस होते हैं, जिसको हम लोग सर्वे के माध्यम से लेते हैं। अभी हम लोग ने स्लाइड में देखा कि वेरियस सर्वेस हम लोग अंडरटेक करते हैं। अच्छा, सर्वे और विभिन्न विभागों का जिनका डायरेक्टली मेजर नहीं होता, उनका इसी सर्वे के माध्यम से होता है। लेकिन जब फील्ड में सर्वे होता है तो वो विभाग उससे अब सेंसिटाइज्ड हैं कि नहीं है, ये भी हम लोग को नहीं पता। तो वो भी जानने की जरूरत है, ताकि जब फील्ड में सर्वे चल रहा हो तो वो डिपार्टमेंट को भी पता रहे कि हमारे डिपार्टमेंट की जो योजनाएं हैं, जो कैप्चर होगा इस डेटा में, वो ठीक हो रहा है कि नहीं। इसमें जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज हम लोग करते हैं, अगर इंडस्ट्री विभाग यहाँ पे होगा तो वो समझेगा कि पिछले 6 महीने में शासन ने इसमें बहुत फोकस किया कि डेटा की क्वालिटी इंप्रूव हो और एनएसओ के साथ लगातार हम लोग कोऑर्डिनेटेड रहे, ताकि ये जो हम लोग का एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है उसके माध्यम से जो डेटा आ रहा है वो हमारा एक्यूरेट रहे। जो डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं उसको एक्यूरेटली हम लोग कैप्चर कर पाए अपने डेटा में, कोई डेटा मिसिंग ना हो। और डेटा ठीक आ रहा है कि नहीं, ये विभाग को भी देखने की जरूरत है कि उनकी योजनाएं जो एम्ड थी, जो ऑब्जेक्टिव था कि हम इस योजना को लाएंगे तो हमारा इतना डेवलपमेंट होगा, वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। देन दिस इज द हाउसहोल्ड सेक्टर। देन देयर इज वन अदर सेक्टर, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड्स। जैसे जो बॉडीज होती हैं जो अपनी इनकम तो करती हैं, जैसे ट्रस्ट हैं, टेम्पल्स हैं, बट दे आर नॉट मेंट फॉर मेकिंग प्रॉफिट। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स हो गई सेक्टर के अंदर। हर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स का कैसे हम डेटा लेते हैं, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वी हैव द बजट डॉक्यूमेंट्स। देन कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनके भी हमारे पास एनुअल अकाउंट्स हो जाते हैं। फिर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीज हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि करीब 100 सेंट्रल गवर्नमेंट की, देन ऑटोनॉमस बॉडीज, वी ऑल हैव देयर एनुअल बजट डॉक्यूमेंट्स, बी इट बैलेंस शीट और। तो बहुत रिगरस और बहुत ह्यूज एक्सरसाइज है। इसको ब्रेकअप करके अपने अपने डिपार्टमेंट के रोल को हमें समझना है, यही इस वर्कशॉप का एक ऑब्जेक्टिव है। और इस वर्कशॉप को हम लोग ये एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है। जैसा मैडम ने, डायरेक्टर मैडम ने बताया था कि चीफ सेक्रेटरी सर ने अपेक्षा की थी कि हर विभाग को सेंसिटाइज किया जाए, हर विभाग को ट्रेन किया जाए, उनको जानकारी रहे। इस कड़ी में हम लोगों ने पिछले साल सीएसओ ने हम लोग के लाइन डिपार्टमेंट्स के एसीएस, सीएस की अध्यक्षता में एसीएस प्रमुख सचिव, सचिव
सर वगैरह के साथ एक वर्कशॉप भी आयोजित की थी और कई मीटिंग्स हाई लेवल पे हो चुकी हैं। तो विभाग के टॉप लेवल्स एंड ऑल द लेवल्स हु आर इनटू वर्किंग, सभी को ट्रेन करने का अपेक्षा की गई थी, जिसके क्रम में ये हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इसमें हम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का पूरा उपयोग करना चाहिए, so that the better we understand the things, the better we will be able to perform our duties, and that would be our service for the nation building and our service for being part of the accelerated development journey which UP is undergoing. और ये हमारा अपना रोल के प्रति भी प्रतिबद्धता रहेगी। तो सेक्टर्स जो आएंगे अभी सत्र, उसमें आप लोग अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ पूछिएगा कैसे कंप्यूट होता है, समझिएगा उसके क्लासिफिकेशन को, मतलब पूरी अच्छी समझ के साथ इंटरैक्टिव बना के आप इसको यहाँ से कुछ ग्रहण करके जाइएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और यही मेरी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ है। इसी के साथ